Hello guys, welcome back to MC Academy. I hope you are doing well. Our today's lesson is reading comprehension passage number 3. I'll teach you a time-saving strategy to solve reading comprehension in exams. ये लेसन खास करके उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सिंध में STS सिबा टेस्टिंग सर्विस में अप्लाई करते हैं या FPSC, PPSC या SPSC के लिए भी मुफीद साबित होगा। इससे पहले मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 1 का लेसन अपलोड किया है जिसकी एंड में पैसेज नंबर 2 को टेस्ट के तौर पर दिया गया था और आज के लेसन के एंड में पैसेज नंबर 2 की भी अपलोड की जाएगी। लेट्स मूव टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 3। पैसेज 3 की मैं रीडिंग करूंगा जिसको आपने खुद अंडरस्टैंड करना है और जब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपने खुद गेस करने हैं और फिर मैं आपको पॉइंट आउट करवाऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज की कौन सी लाइन में है। लेट्स रीड द पैसेज। It is difficult to reconcile the ideas of different schools of thought on the question of education. Some people maintain that pupils at a school should concentrate on a narrow range of subjects which benefit them directly in their subsequent careers. Others contend that they should study a wide range of subjects so that they will not have only the specialized knowledge necessary for their chosen careers, but also sound general knowledge about the world they will have to live and work in. Supporters of the first theory state that the greatest contributions to civilization are made by those who are most expert in their trade or profession. Those on the other side say that unless they have had broad general education, the experts will be too narrow in their outlook to have sympathy with their fellows or a proper sense of responsibility towards humanity as a whole. सबसे पहली बात, इस पैसेज को आपने समझना बहुत लाजमी है और कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखनी है और जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वो पॉइंट्स हमारे जहन में आ जाएंगी। चलिए इस पैसेज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। A suitable title for the passage would be Option A, different schools of thought, B, the context of education, C, two views on education, and D, effective education. ओवरऑल आपने पैसेज को ही मद्देनजर रखना है और आपने पैसेज का मुनासिब टाइटल चूज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर गेस करने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। उसके बाद मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टू व्यूज ऑन एजुकेशन, क्योंकि इस पैसेज में ओवरऑल एजुकेशन से रिलेटेड टू व्यूज पर फोकस किया गया है। सो टू व्यूज ऑन एजुकेशन वुड बी अ सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। उम्मीद है यह क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The first school of thought believes that students should Option A, study what they want, Option B, be given general knowledge, C, study only a few subjects, and D, study seriously. करेक्ट आंसर को गेस करने के लिए आपको 5 सेकंड्स दिए जा रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हमें पैसेज तक ही महदूद रहना है। तो यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू पैसेज देखें, सेकंड लाइन में देखिए, सम पीपल मेंटेन दैट pupils एट स्कूल शुड कंसंट्रेट अ नैरो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच बेनिफिट देम डायरेक्टली इन देयर सब्सिक्वेंट करियर्स। यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो हमें आने वाले करियर में फायदा दें। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन सी को चूज करना है, स्टडी ओनली अ फ्यू सब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The second school of thought believes Option A, students should study general knowledge, B, students should specialize with a background of general knowledge, C, studies should be broad-based, and D, specialization should not be the goal of studies. You have 5 seconds to guess the answer. यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पैसेज की लाइन नंबर 3 में सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट की वाज़ेह पॉइंट है, Other contend that they should study a wide range of subjects so that they will have not only specialized knowledge necessary for their chosen careers, but also sound general knowledge about the world they will have to live and work in. वाज़ेह है कि हमें मज़ामीन की वसी रेंज को स्टडी करना है, तो हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो कि हमारे करियर के लिए मुफीद है, जिसके साथ जनरल नॉलेज भी हासिल करनी चाहिए। लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स शुड स्पेशलाइज विद द बैकग्राउंड ऑफ जनरल नॉलेज, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उम्मीद है ये क्लियर होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इट इज डिफिकल्ट टू रिकंसाइल द आइडियाज ऑफ टू स्कूल्स ऑफ थॉट बिकॉज ऑप्शन ए, दे लैक क्लैरिटी, बी, दे आर नैरो, सी, दे इग्नोर ईच अदर्स कंसर्न्स, एंड डी, दे आर कंट्राडिक्टरी। आपको 5 सेकंड्स दिए जा रहे हैं आंसर गेस करने के लिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दे आर कंट्राडिक्टरी, क्योंकि जो दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उनको इसलिए तस्लीम नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मुतजाद हैं।
उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स विद ब्रॉड बेस्ड नॉलेज वुड ऑप्शन ए बी मोर अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स, बी नॉट बिकम स्पेशलिस्ट्स, सी फेल टू डेवलप प्रॉपर स्किल्स and D make larger contribution to civilization. Your time starts now. यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी मोर अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स। ये आइडिया सेकंड स्कूल ऑफ थॉट में पेश किया गया है, जिसका आंसर पैसेज के लास्ट 3 लाइन्स में भी मिल सकता है। यहाँ पर पैसेज नंबर 3 के क्वेश्चंस मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है कि किसी भी एमसीक्यूज टेस्ट में कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज को डील करना आपके लिए आसान रहेगा, और इसी से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसकी एंड में पैसेज नंबर 2 को टेस्ट के तौर पर दिया गया था, जिसकी की अभी 10 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग MC Academy YouTube चैनल।